Hello everyone, this is Amika Mahajan. Welcome to my channel. This video is focused on electric field. If I have a charge at point O and there is another point P at a distance r from O and I place Q node at point P, then Q and Q node will interact with each other and that force will be given by Coulomb law. Now what happens if I remove Q node from point P? What is left in the surroundings? Is there nothing? अगर P point से Q नोड को हटा दिया जाए तो क्या कुछ भी नहीं बचेगा? अगर कुछ बचेगा ही नहीं तो P पे Q नोड रखने पे उस पे फोर्स कैसे लगे? In order to answer such questions, the early scientists introduced the concept of field. The concept of field was first introduced by Faraday and is now among the central concepts in physics. The term field in physics generally refers to a quantity that is defined at every point in space and may vary from point to point. Physics में जो field है वो उस quantity को refer करता है जो कि हर point पे define होती है space के, लेकिन जैसे ही point vary करता है इसकी value भी change होती जाती है. According to this, if we say that there is a charge Q at point O, it will produce field in every direction in the surroundings. इस Q की वजह से P पे भी कोई field होगा. वो जो field है वो क्या होगा? 1/4 pi epsilon naught Q bar by r square. वो field सिर्फ Q की वैल्यू पे डिपेंड करे, यानी उस चार्ज की जिसका field डिटरमिन करना है. आप कोई और चार्ज Q नोट P पे रख देंगे तो ये Q नोट पे फोर्स लगाएगा. That force will be given by Coulomb law, जो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस Q एंड Q नॉट. अब बेसिकली क्या देखा हमने कि जो चार्ज Q है जो O पे प्रेजेंट है उसका हमने फील्ड डिटरमिन करना है P पे. तो जिस चार्ज का हमने फील्ड डिटरमिन करना है दैट इज द सोर्स चार्ज, एंड द चार्ज व्हिच इज प्लेस्ड एट पॉइंट P टू डिटरमिन फील्ड ऑफ Q, दैट चार्ज Q नॉट इज नोन एज टेस्ट चार्ज. नाउ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस Q and Q नॉट कैन बी लुक्ड अपॉन एज interaction between this test charge Q naught placed at point P and electric field at point P due to source charge Q. तो ये जो force है ये किसके equal होगा? Multiplication of test charge Q naught and field of source charge at point P. For all system of charges, the measurable quantity is the force, which can be determined using Coulomb law and superposition principle. तो हमें electric field define करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? Actually, electric field is an elegant way of characterizing the electrical environment of a system of charges. An electric field may be defined as the space around a point charge up to which it can interact with any other charge if placed within that. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी चार्ज की वजह से उसके आसपास का दायरा है जिसके अंदर कोई और चार्ज रख दे तो ये उसको इंटरेक्ट कर सके. And that interaction goes on varying depending upon where is the position of that point. Strength of electric field is determined in terms of electric field intensity. So electric field intensity at a point due to this source charge Q is defined as electrostatic force per unit positive test charge placed at that point, provided this test charge is vanishingly small. इसका मतलब क्या हुआ? Q की वजह से P पे फील्ड डिटरमिन करना है तो P पे एक टेस्ट चार्ज रख दो Q नोट और दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है F नोट कर लो. उस F को जितना टेस्ट चार्ज आपने P पे रखा है उससे डिवाइड कर दो तो हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. लेकिन ये जो टेस्ट चार्ज है ये वेनिशिंगली स्मॉल है. नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस. ये डिपेंड ही नहीं करती टेस्ट चार्ज पे, चाहे इसको डिटरमिन करने के लिए किसी पॉइंट पे हमें टेस्ट चार्ज रखना पड़ता है. ऐसा क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय F by Q नॉट एंड F इज 1/4 pi epsilon naught Q नॉट बार अपॉन r स्क्वायर. अगर हम F और Q नॉट की रेशियो लें तो ये Q नॉट कैंसिल हो जाता है, इसलिए ये Q नॉट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ही नहीं करता. चाहे उसको डिफाइन करने के लिए हमें उस पॉइंट पे क्या रखना पड़ता है? टेस्ट चार्ज रखना पड़ता है, लेकिन ये टेस्ट चार्ज के क्या हो जाता है? इंडिपेंडेंट हो जाता है. अब बेसिकली और क्या चीज हमें ध्यान में रखनी है कि ये जो टेस्ट चार्ज है इसके ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन टेस्ट चार्ज की पोजीशन पे ऊपर जरूर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज. जिस पॉइंट पे आपने
फील्ड डिटरमिन करना है उसका सोर्स चार्ज से कितना डिस्टेंस है। तो ये वेरी करेगा अगर हम टेस्ट चार्ज की पोजीशन को चेंज करते जाएं। अब ये टेस्ट चार्ज हम निग्लिजिबली और वैनिशिंगली स्मॉल क्यों रखते हैं? अगर हम उसको स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो उसका अपना फील्ड सोर्स चार्ज के फील्ड के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देगा एंड वी विल नॉट बी एबल टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। सो वी वांट दिस टेस्ट चार्ज टू बी vanishingly small so that its field does not interact with field of source charge. अब ये जो सोर्स चार्ज है it should remain at its original position. अब Q नोड की प्रेजेंस में इसको होल्ड करना है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, तो कौन करेगा? अनस्पेसिफाइड फोर्सेस। नाउ अब क्वेश्चन आता है, इज इलेक्ट्रिक फील्ड नेसेसरी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्वीनियंट बट नॉट रियली नेसेसरी। तो इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस कहां पे है? True physical significance of concept of electric field emerges only when we go beyond electrostatics and we deal with time dependent electromagnetic phenomena. जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बियॉन्ड चले जाएं, कहां पे? टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना पे, तभी इसकी ट्रू सिग्निफिकेंस पता चलती है। अब वहां पे इस फील्ड पिक्चर को अगर हम समझें तो ये कोई चार्ज Q1 है, जब ये एक्सलेट करेगा तो ये अपने में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालेगा व्हिच विल ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट एंड दे विल रीच एट पॉइंट P. P पे क्या है? एक चार्ज Q नॉट Q2 है, उसके ऊपर ये फोर्स लगानी शुरू कर देगा। इसका मतलब जब चार्ज एक्सलेट हुआ और उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकली और जब वो Q2 पे पहुंची और उस पे फोर्स लगाई, उसके बीच में टाइम डिले रहेगा। Even though electric and magnetic fields can be detected only by their effects on charges. इनके इफेक्ट को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? अगर वहां पे चार्जेस पड़े। Yet they have their own physical existence. They are not merely used as instrument to model real world situations and events. They evolve according to laws of their own and they can also transport energy. इलेक्ट्रिकोमैग्नेटिक फील्ड की अपनी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो सिर्फ एज इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होते टू मॉडल रियल वर्ल्ड सिचुएशंस एंड इवेंट्स, वो अपने ही लॉ से इवॉल्व होते हैं और एनर्जी को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।